ایمان، یہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کے ہونے اور نہ ہونے کی کیا علامت ہے؟ میرا آج کا جو گیان علم پہ باتیں چلے گی وہ اس ایمان کے ہونے نہ ہونے کے اوپر اس کی کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے، اسی کے اوپر آج چلے گی۔ ہر انسان آج کے دور میں ایک ہی بات اس کے لفظ سے سننے کو ملتا ہے، جس نے تھوڑا سا بھی علم، تھوڑی بھی علم مدرسے سے یا اسکولوں سے لی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، وہ ایک ہی الفاظ اپنے لفظوں سے بولتا ہے کہ ایمان ہو تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہونا اس بات کو بولتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ ہر انسان کے منہ سے الفاظ نکلتی ہے۔ تو میرا آج کا یہ ویڈیو، یہ تعلیم کی باتیں، گیان کی باتیں بتانے کا، یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں کہ کسی کی مخالفت کی جائے، کسی دھرم سے، کسی دھرم کی بھی نہیں مخالفت، نہیں اس کی مذاق اڑانے کی یا چھوٹا یا نیچا دکھانے کی کوئی منشا ہے۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی دھرم، کسی بھی فرقے کی مخالفت، اس کو چھوٹا یا اس کو نیچا گرانے کی کوئی منشا نہیں۔ یہ سبھی کے لیے کام آنے والی ویڈیو ہے اور سبھی کو تعلیم، گیان دینے کا مین مقصد ہمارا منشا ہے۔ ایمان کی کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے، اس پر میں ویڈیو بنانے پر اتاروں اس لیے ہوا کہ آج سے کچھ روز پہلے میری ایک ایسے شخص سے گفتگو ہوئی جس کا نام صادق ہے، جو ویسے تو ہمارے ریلیشن میں، ہمارے رشتہ دار میں ہی وہ لگتا ہے۔ اس سے گفتگو ہوئی، اس نے ایمان کے اوپر مجھ سے بات چھیڑ دی۔ اور یہ ویڈیو میرا بنانے کا یہ بھی مقصد نہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا بنوں یا اس شخص کو جس نے بات چھیڑی ہے اسے میں نیچا دکھاؤں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس شخص کی اصلاح ہو، اسے نالج ملے، اس کو گیان ہو، اور ہر مسلمان، ہر ذات دھرم کے، ہر فرقے کے لوگوں کو بھی یہ جانکاری، یہ نالج پہنچ جائے۔ میرا مین مقصد یہی ہے، باقی اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی منشا نہیں ہے۔ تو جس شخص کی میں نے بات کی، جس کا نام صادق ہے، جو ہمارے ریلیشن میں لگتا ہے، تو اس شخص نے ہم سے جب فون پر ہم سے گفتگو کی، ہم سے بات کی، اسی نے ہمیں کال کیا، اور جب ہم سے بات وچار کی، خیریت بات لینے کے بعد اس سے بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، یہاں تک کہ میری تعلیم، جو ہمارے سرکار گوھر شاہی کی دی ہوئی تعلیم ہے، اس تعلیم پہ بات آ گئی۔ تو وہ ہمارے سرکار، ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں بولنے لگا کہ یہ تعلیم سب نے چھپائی، پھر آپ کا پیر کیوں کھول رہا ہے سب کے سامنے؟ اس طرح کا لینگویج کا بھی استعمال کیا، استغفر اللہ، کہ کھولنا نہیں چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ تو میں نے اسے جواب دیا ہی کہ اللہ علم، تعلیم کسی کو عطا کرتا ہے کس لیے؟ خود تک محدود رکھنے کے لیے تو نہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعلیم کسی کو عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے دوسرے مخلوقوں، بندوں تک وہ تعلیم پہنچائے، تاکہ اس کے گمراہ بندے اس سے
गुमराहियत से निकले और हक को पहचाने। इसलिए अल्लाह तालीम किसी बंदों को अता करता है। तो ये सब बात मैंने समझाई। फिर उसने बात घुमा करके यहाँ पे ले आया कि मेरी ये तालीम जो है, जो मैंने कहा उसे कि जिक्र, सबसे पहले कल्ब में अल्लाह का जिक्र को बसाना, सबसे अफजल तरीन हर जगह कुरान मजीद में, हदीस में अगर आया है, जिस अल्फाज के बारे में रब ताला हमने फरमाया है, जिस चीज़ के बारे में रब ताला ने फरमाया और हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अफजल जिक्र है। जिक्र इलाही के बारे में फरमाया और उसे कुरान मजीद के जगह जगह पे आयतें भी जिक्र के मुतालिक मैंने पढ़ के बताई और हदीसें भी सुनाई। तो वो अपने किस बुग्ज को लेकर के, पुरानी उसके अंदर बुग्ज भरी हुई है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर इस बात का अकर है, बुग्ज है कि मैं ऐसे शख्स की नहीं सुनना पसंद करूँगा। मैं सुनना पसंद करूँगा तो मौलवियों की, आलिमों की, वो जो कहेंगे वही मानूंगा। लेकिन वो ये भूल गया कि अल्लाह हिदायत, अल्लाह इल्म अगर किसी को देना चाहे तो वो राह चलते भिखारी को भी, फटे हाल लोगों को भी दे सकता है। अल्लाह अगर देना चाहे तो उसके आगे का पैदा किया हुआ बच्चा, जो उसका बच्चा है, उस बच्चे को दे सकता है और उस बच्चे के जरिए इल्म, हिदायत अल्लाह उसके माँ बाप तक पहुंचा सकता है। चाहे तो अल्लाह 4 दिन के बच्चे को भी अता कर सकता है, दे सकता है इल्म। तो ये वो गुरूरियत, वो अखर में ये बात भूल गया और उसके अंदर जो ये बुग्ज थी, उस बुग्ज पर ही वो बहस करने लगा कि कोई जिक्र कल्ब वल्ब नहीं होता। कल्ब का जिक्र, अंदर का जिक्र कुछ नहीं होता। अगर जिक्र करने का, जिक्र की बात करते हो तो फिर अहले हदीस इतने तौहीद परस्त हैं, भला कोई उनसे ज्यादा जिक्र करता है। ये इस तरह का हमसे प्रस्ताव रखा, हमारे आगे वो ऐसा अल्फाज रखा कि वो इतना तौहीद परस्त है, इतना वो अल्लाह का जिक्र करता है कि उससे ज्यादा कोई जिक्र करता है। तो क्या वो अल्लाह के राह में वो मोमिन है, वो अल्लाह वाला है? उसका बोलने का जुमला यही था कि उससे ज्यादा तो कोई अल्लाह का जिक्र करता ही नहीं है। लेकिन नमाज ही सबसे अफजल है, सबसे बेहतरीन है। जिक्र के बात किया जाए तो सबसे ज्यादा तो जिक्र अहले हदीस करता है, जो उससे ज्यादा जिक्र करने वाला है ही नहीं। ये बात उसने बोला मुझसे, तो मैंने उसको एक ही बात बोला कि वो जिक्र जो करता है वो कौन सा जिक्र करता है, वो जिक्र किस टाइप का करता है, आपने देखा? वो जिक्र जो करता है अहले हदीस, तो वो लफ्जों का जिक्र करता है, तस्बीह का जिक्र करता है। फिर मैंने हजरत सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह का वो कलाम भी उसके आगे पेश करके मैंने बताया कि तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया की लेना हत तस्बीह पढ़ के। यानी कि तस्बीह पे वो जिक्र करता है, जिक्र इलाही करता है, जवान से जिक्र करता है, लेकिन दिल ना फिरा तो क्या फायदा वैसा जिक्र करने से। उसको ये भी बताया, लेकिन वो अपने ही हट धर्मी, अपने अकर में, वो अपने बुग्ज में बहस वो करता चला गया और फिर वो जिक्र को ऐंठने लगा कि रखिए जी आप अपना जिक्र, कोई ऐसा जिक्र बिक्र नहीं होता है, कल्बी जिक्र बिक्र नहीं होता है। अगर दिल में शैतान बैठा है तो फिर कोई जिक्र काम नहीं आने वाला। वो इस तरह का बात बोला। तो मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, तुम्हारे हिसाब से दिल में शैतान बैठा है तो कोई जिक्र काम नहीं आने वाला, तुम्हारा कहना है। तो अगर दिल में शैतान बैठा है तो तुम्हारा ये 5 वक्त का नमाज पढ़ना, तुम्हारा ये रोजा रखना, तुम्हारी ये नफिल अदा करना, तुम्हारी ये जकात देना, तुम्हारे ये गरीबों का मदद, सदका, खैरात करना, ये कुछ भी तुम्हें काम नहीं, नफा नहीं पहुंचाएगा।
अगर दिल में शैतान बैठा हो तो ये भी तुमको नफा नहीं पहुंचाएगा। तुम जाहिरी बात कर रहे हो कि दिल में शैतान बैठा तो कुछ नहीं है, वो कल्बी जिक्र कोई काम नहीं आता है। तो अगर दिल में शैतान बैठा है तो ये तुम्हारा जितना भी अमल है जो भी मैंने बताया अभी, चाहे वो तुम रोजा रखो, हज करो, नफिल अदा करो, खैरात ज़कात करो, सदका करो, अगर दिल में शैतान है तो ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये सब रियाकारी में तुम्हारा जाने वाला है, दिखावा में जाने वाला है। इस बात को उसने समझा नहीं और ये बात उगल दिया। तो मेरा ये कहना है कि दिल में शैतान बैठा हुआ है, ये तुम्हारा ये अमल भी तुम्हारा काम नहीं आने वाला। तो उस दिल के शैतान को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये बात दिल में शैतान का तो बोल दिया, दिल में शैतान बैठा है तो कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन दिल को शैतान को, दिल के अंदर से शैतान को निकालने का कौन सा अमल है ये उसे मालूम ही नहीं। बस खाली बहस कर गुजरा। और आगे क्या उसने बोल दिया नादानी में, जिसको मालूम नहीं उसे कुछ क्या बोल दिया, क्या कहे गुजरा वो कि ये जिक्र से भी अफजल। मैं तो बता रहा था उसे कि हर इबादत से, हर अमल से अफजल जो है, अफजल तरीन जिक्र है। कुरान मजीद की आयतों से मैंने निचोड़ उसे बताया, हदीस से बताया कि सबसे अफजल जो है अल्लाह का जिक्र है। जो वो जिक्र लफ्ज से हम जो करते हैं, तस्बीह पे करते हैं, वो जिक्र नहीं, कल्ब का जिक्र। तो उसने तो ये सब बात सुना हमारे अल्फाज से कि कल्बी जिक्र सबसे अफजल है। तो उसने तो जवाब दे दिया कि दिल में शैतान बैठा है तो कोई कल्बी बल्बी नहीं होता, ऐट के जवाब दिया, सब बेकार है। तो उसको मैंने जवाब भी दे दिया इस वीडियो के माध्यम से कि तेरी नमाज भी बेकार है, तेरे रोजे भी बेकार है। अगर दिल में शैतान बैठा है तो तेरे हर वो अमाल बेकार हैं। उसने मुझे उस समय ये बात बोला कि सबसे जरूरी जो है वो ईमान का होना है। वो बहस पे उतारू था, झगड़े पे उतारू था और सुनना चाह रही नहीं रहा था आराम से कि सुने किसी की बात को। उसके अंदर इतना तकब्बुर और इतनी बुग़्ज़ जो कहते हैं, यही ना है ईमान। इसी को ना कहते ईमान की अलामत। ईमान नहीं है तो तकब्बुर और बुग़्ज़ भी आएगा। ईमान अगर नहीं है तो आपके अंदर तकब्बुर और बुग़्ज़ भी आएगा। आप किसी का सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, आप दूसरों को, सामने वालों को छोटा जानेंगे, नीचा जानेंगे, आप उसको वैल्यू ही नहीं देंगे। और अपने लफ्जों से भी उसने ये बात बोला कि मैं तुम्हें वैल्यू नहीं देता, मैं और मेरी वाइफ तुम्हें वैल्यू ही नहीं देती। तो ये ईमान की अलामत है। ईमान नहीं होगा तुम्हारे अंदर, ईमान की बात तो वो कर रहा था, ईमान सबसे अफजल है, लेकिन उसके अंदर ईमान ही नहीं है। ईमान नहीं है तो उसके अंदर बुग़्ज़ है। इसी वजह से वो किसी को वैल्यू नहीं देगा और उसके साथ जो भी शख्स जुड़ा रहेगा वो भी वही काम करेगा। वो भी किसी को वैल्यू नहीं देगा, किसी का सुनना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो लाख अमल कर ले, तहज्जुद पढ़ ले, 5 टाइम का नमाज पढ़ ले, लेकिन ईमान नहीं है तो वो हर को गिरे हुए नजर से देखेगा, किसी को वैल्यू नहीं देगा। वो खुद को ही बड़ा समझेगा, खुद के इल्म पर ही इतराएगा वो। तो ये सब ईमान ना होने की अलामत है। ईमान ना होगी तो ये सब अलामत, ये सब लक्षण उसके अंदर देखने को मिलेंगे बंदे के अंदर। अब मैं तो नरमी से उसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने बोला कि सबसे अफजल जो है वो जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबसे पहले दिया तो वो ईमान की दौलत दिया, ये बात बोला वो। तो मैंने बोला कि अरे भाई, ईमान की दौलत दिया है तो ये बताओ, चलो बताओ ईमान क्या है, कैसे हासिल होती है, कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लोगों के दिलों में दिया, ये बताओ। अब उसके पास जवाब नहीं। वो बोलने लगा कि जाइए जी, आप अपने पीर से पूछिएगा। अब बताइए, मैं आप लोगों के आगे सवाल रखता हूँ। आप अगर किसी मुद्दे को छेड़िएगा, किसी मुद्दे को आप सामने रखिएगा, पेश कीजिएगा, तो उसका मसला भी आप ही ना कीजिएगा। बताइए, अगर आप
कोई भी मुद्दा आप सामने रख दीजिएगा, कोई भी बात आप सामने किसी के रख दीजिएगा, अब आपसे वो पूछेगा कि इसका पूरा हमारे आगे स्पष्ट रूप में इसका मतलब बताइए, तो मतलब भी बताने का भी ज्ञान रखना पड़ेगा ना आपको, कि ज्ञान रखिएगा कि आप कहिए कि जाइए जाके किसी और से पूछिए। इतना तो आप बोल दिए कि सबसे पहले ईमान जरूरी है, लेकिन वो ईमान होता क्या है, ईमान हासिल कैसे होता है, ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों में अता कैसे किया, तो ये चीज मालूम भी तो रखना चाहिए। तो ये मालूम नहीं बंदे के पास, उनके पास ये बात इसका इल्म नहीं। अब इल्म नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या कहा कि जाइए अपने पीर से पूछिए, तो यहाँ पे वो फंस गए वो यहाँ पर ही बोल करके। अब मैं उनके आगे बस एक ही बात रख रहा हूँ कि ठीक है, आप बता रहे कि ईमान बेहद जरूरी है, ईमान जरूरी है, तो ईमान क्या होता है, ईमान हासिल कैसे होता है, ईमान की पहचान क्या है, ये बताओ मुझे। अब वो घबराने लगा, और घबराने में क्या किया कि रखिए जी रखिए, बात की आपसे बातें नहीं करना है, अब हमारा दूसरा कॉल आ रहा है, फोन को कट कर दिया। तो मैं उसकी इस बात को जो उसने खोला नहीं, उसको मालूम ही नहीं था, जिसके बारे में जानकारी नहीं था, बेचारा घबराने लगा और घबरा कर वो फोन कट कर दिया, बंद कर दिया। तो मैं उस ईमान के ऊपर जो आपको आज तालीम जो ज्ञान की बात देने वाला हूं, वो अगर वो बंदा सुनेगा तो उसके भी काम आएंगे और आप लोगों के भी काम आएंगे कि ईमान होता क्या है, ईमान की अलामत क्या है, ईमान हासिल कैसे होती है, आप लोगों के भी काम आएंगे। तो मैं ये ईमान के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि ईमान जो है ये बंदे के अंदर की चीज है, अंदर के मामलात हैं। इसकी अलामत, इसकी पहचान या तो वो बंदा खुद जानता है कि वो कितना ईमान वाला है, या तो वो उसका रब ईश्वर जानता है कि ये कहाँ तक ईमान वाला है। समझ गए? या तो कोई जाकिर कल्बी जो मुर्शिद कामिल से जुड़ा हुआ है वो पहचान पाएगा कि हाँ ये ईमान का कमजोर है। अगर कमजोर ईमान वाले को पकड़ना है तो आपको भी वो रूहानियत की तालीम होनी चाहिए। आप भी उस तालीम के जरिए अपना सच्चा गुरु मुर्शिद अगर थामे हुए हैं तो मुर्शिद की तालीम के जरिए जो रूहानियत की तालीम आपको अता कर रहा दे रहा है, तो उस तालीम के जरिए, इल्म के जरिए आप कमजोर ईमान वाले को पकड़ सकते हैं कि हाँ इसका ईमान कमजोर है, तो उसकी पहचान है जो ये आप रूहानियत की तालीम के जरिए आप पहचान लगा सकते हैं। समझ गए? वरना ऐसे हर कोई धोखा खा जाएगा, नहीं पहचान पाएगा। या तो रब ही जानता है कि इसका ईमान कितना मजबूत है, या तो वो बंदा खुद ही जानेगा कि हम कितने ईमान वाले हैं, या तो तीसरा वो पहचानेगा उसकी ईमान को जो सच्चा मुर्शिद से रूह का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने कल्ब का ज्ञान, तालीम जिसने लिया हुआ है सच्चे मुर्शिद से, सच्चे पीर से लिया हुआ है, वो पकड़ लेगा कि हाँ ये कितना ईमान वाला है। तो ईमान की कई किस्में हैं, कई अलामत हैं, एक दो अलामत नहीं है, कई अलामत हैं। सबसे पहले बात तो जान लें कि ईमान जो है वो दिखाने वाली चीज नहीं है, ईमान आपके अंदर का मामला है, ये अंदर की चीज है। समझ गए? और इस अंदर के मामलात को, ईमान को दुरुस्त, अंदर की चीज को दुरुस्त करने के लिए आपको अंदर का ज्ञान, यानी कि आपके आत्मा का ज्ञान, आपके रूह का ज्ञान आपको लेना बेहद जरूरी है। और वो ज्ञान आपको कोई सच्चा गुरु, मुर्शिद, पीर जो रब का दोस्त होता है वही देता है। उसके जरिए आपके अंदर से शुद्धि होती है और आपके अंदर पाकीज़गी आती है, आपके अंदर नूर बनता है, जिसकी वजह से आपके अंदर नूर सरायत करती है, ईमान आपके अंदर कायम होता है, शैतान आपके अंदर से निकलता है। उसने बोला कि अंदर शैतान बैठा है तो सब बेकार है, अंदर का जिक्र कल्ब ये सब बेकार है। तो ये अंदर की तालीम ही लेंगे तभी ना अंदर की चीज को बाहर पहले निकालेंगे। आप अंदर की तालीम लेना छोड़ दिए,
और पीर और मुर्शिद को पकड़ना नहीं चाहेंगे, अंदर की तालीम नहीं लेंगे, तो अंदर तो शैतान बैठा रहेगा, निकलेगा नहीं। अब आप बाहर बाहर आप मेकअप सेकअप करते रहिए, यानी कि ये दाढ़ी बढ़ा लीजिए, नमाजें पढ़िए, नफिले पढ़िए, बाहर बाहर आप कुछ भी कर लीजिए, अंदर तो शैतान बैठा हुआ है। बाहर में आप घर मकान को खूब सजा दीजिए, अंदर में तो शैतान बैठा हुआ है। तो अंदर के शैतान को बैठा हुआ है जो, उसको भगाने के लिए अंदर का ज्ञान लेना जरूरी है। और अंदर का ज्ञान सच्चा मुर्शिद पीरे कामिल देता है, और वो पीर गुरु जो देता है रूह का ज्ञान, तो वो अंदर के घर का ज्ञान देता है। अंदर के घर में जब अल्लाह का जाप, अल्लाह का मंत्र चलता है, तो वो शैतान भागता है, और वो शैतान भागता है तो फिर आपके अंदर ईमान सरायत करती है, आप ईमान वाले बनते हैं। और जब आप ईमान वाले बनते हैं तो आप मोमिन हैं, आप मोमिन हैं। और जब आप मोमिन हैं तब आपके ऊपर नमाज फर्ज है, रोजे फर्ज हैं, हज फर्ज है। वरना आप अंदर शैतान बैठाए हुए हैं और ऊपर से आप घर को सजा दें और पेंट वगैरह कर दें, खूबसूरत से खूबसूरत कर दें, अंदर शैतान बैठा हुआ है, तो सब बेकार है, सब बेकार है। यहाँ तक कि आपने जो ईमान की बात लोगों से कर रहे हैं, ईमान 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 कर रहे हैं, वो भी आप इधर उधर से उड़ती हुई खबरें या फिर कोई किताब या रिवायत या कुरान या हदीस की तालीम ले लिया है इधर उधर से, आप उसके मुताबिक आप बोल रहे हैं, उस किताब के मुताबिक आप बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन उसकी हकीकत आपके अंदर कायम करना, ये आपको भी वहीं कैसे कायम किया जाता है। तो मैंने ये कहा, मेरा कहने का अर्थ मतलब ये है कि जैसे कोई हदीस की बातें सुन लिया जिस पे ईमान के मुतालिक बताया गया, ईमान की पहचान बताई गई है, कुरान मजीद पढ़ लिया, ईमान के प्रति बताई गई है कि ईमान क्या है, अगर उस पे आप अपने आप को ईमान वाला बन रहे हैं और उस हदीस के मुताबिक आप अपने आप को ऐसा ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ईमान वाले नहीं हैं। अगर उस पे आप जाहिर कर रहे हैं कि हम इसके मुताबिक चलते, तो आप ईमान वाले नहीं हैं, आपके अंदर ईमान सरायत नहीं की है। ईमान असल में है क्या? ईमान का मतलब कि आपको अंदर ईमान सरायत करना, इसका मतलब कि आप मोमिन बन गए, इसका मतलब कि आप मोमिन बन गए, ईमान का मतलब ये हुआ। तो ईमान हासिल होता कैसे है? तो ईमान जो है किसी भी तरह का डर और खौफ से सरायत नहीं करता है, किसी भी तरह का डर और खौफ से उस पर अमल की जाने वाली जो अगर आप कर रहे हैं तो वो ईमान की अलामत नहीं है, वो ईमान नहीं है। किसी भी तरह का हुक्म पे पैरवी करना, ये भी ईमान की पहचान नहीं है। ईमान एक ऐसी शय है जो नहीं डर से खौफ से आपके अंदर सरायत हो सकती है, और नहीं आपको किसी के हुक्म की पैरवी करने से आपके अंदर कायम हो सकती है। चाहे वो डर खौफ, चाहे रब ताला का ही डर खौफ क्यों ना हो, चाहे ईश्वर का डर खौफ से ही आप उसके ऊपर चलने की कोशिश करें, वो क्यों ना हो, तो भी वो आप ईमान के कच्चे ही हैं, ईमान आपका पुख्ता नहीं हुआ। चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म समझ करके उस पर पैरवी ही क्यों ना करें, तो भी आप पक्के ईमान वाले नहीं हैं, आप कच्चे ही हैं। आप वक्त आने पर अगर वैसा समय वैसा वक्त आए तो आप अपना कदम डगमगा देंगे और आप पीछे हट जाएंगे, आप ईमान से हाथ धो बैठेंगे, वो पक्का ईमान नहीं हुआ। असल ईमान वो होता है जो ना ही डर और खौफ से कायम होती है, ना किसी के हुक्म पे पैरवी की जाने वाली होती है। असल ईमान वो होता है कि आपको इश्क और मोहब्बत से कायम हो, आपको श्रद्धा भक्ति से कायम हो, जो रब के मोहब्बत में, ईश्वर की मोहब्बत में इतना आप दीवाना बार हो जाएं
इश्क आपके अंदर इतनी कायम हो जाए उस रब के प्रति कि आप मोहब्बत में वो चीज को आप कायम करें, दीवाने हो जाएं कि हम उसके लिए मर मिटने पे फिदा हैं। आप हुजूर के इश्क में इतने दीवाने बार हो जाएं कि आप मोहब्बत में, इश्क में हुजूर के बताए हुए तालीम को अपनाएं और उस पर आप कायम रहें। ये ईमान है। तो हुजूर से इश्क और मोहब्बत क्या है? इश्क और मोहब्बत हुजूर से ये है कि हुजूर की उस सुन्नत को जिंदा करना जिस सुन्नत को हम आपने फौत कर दिया, जो फौत हो चुकी है, जो हुजूर की असल सुन्नत है, सराय सदर वाली सुन्नत। हर सुन्नत को तो अपनाते हैं, दाढ़ी रखने की सुन्नत अपनाते हैं, इमामा बांधने की सुन्नत है, नफिल पढ़ते हैं, सुन्नत अदा करते हैं, लेकिन एक सुन्नत ऐसी है जो हुजूर के सराय सदर वाली सुन्नत है, जो हुजूर ने अपना सीने का सराय सदर हुजूर ने करवाया, अल्लाह ने किया, करवाया। हुजूर के सराय सदर, उनका सीना चाक हुआ। तो ये सराय सदर वाली सुन्नत जो कुरान मजीद में भी आई कि अफमन सरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फा हुआ अला नूर ही मिन रब्बी, ये उम्मती के ऊपर फर्ज है, लाजिम है कि हुजूर की सराय सदर हो सीने की, तो उम्मती की भी सराय सदर हो। तो ये हुजूर की सुन्नत है जो फौत हो चुकी है। इस सुन्नत को जिंदा करना और अपने सीने का सराय सदर करवाना हुजूर के इश्क में, ये है ईमान की अलामत। जब सीने का सराय सदर होगा तो सीने के अंदर से, आपके अंदर से दिल में बैठा हुआ मैल जो है, जो गंदगी है, जो शैतान है, वो बाहर निकलेगा। तो अंदर नूर कायम होगा। नूर कायम होगा तो आपके अंदर ईमान तरायत करेगी, ईमान वाले बनेंगे आप। ये हुआ असल ईमान। अगर आपने किताब पढ़ के, हदीसें पढ़ के आपने उस पर अमल सिर्फ किया है, तो ये तो सिर्फ हुजूर की पैरवी कर रहे हैं, हुक्म मान रहे हैं कि हुजूर का हुक्म है, और ये हुक्म आप का पक्का नहीं है, मजबूत नहीं है। आप वक्त आने पे डगमगा सकते हैं, फिसल सकते हैं। ऐसा माहौल, ऐसा स्थिति पैदा होने पर ही आप भटक सकते हैं, क्योंकि आपने तो ऊपर ऊपर आपने किताब पढ़ के उस पर अमल शुरू कर दिया, लेकिन अंदर में तो शैतान बैठा हुआ है। अंदर वाला तो तालीम हुजूर का लिया ही नहीं, जो सराय सदर वाला दिल वाला तालीम है। दिल का तालीम, अंदर की तालीम लेंगे तो ना अंदर से आप मैल को निकालेंगे, गंदगी को निकालेंगे, शैतान को निकालेंगे, तो आप ईमान वाले बनेंगे। तो इसीलिए अंदर की तालीम लेना हुजूर के मोहब्बत में, इश्क में, कि हम हुजूर के दीवाने हैं, इश्क वाले हैं। हुजूर का तालीम जो है वो बातिन की तालीम है, अंदर की तालीम। अंदर की तालीम लेंगे तो अंदर से आप अपने अंदर के शैतान को निकालेंगे। इसके लिए शुरू से बैत का सिलसिला चला आ रहा है, बैत होने का, पीरी मुरीदी का सिलसिला चला आ रहा है कि सच्चे पीर के हाथ पर ही मुरीद हो। मुरीद हो जो सच्चा मुर्शिद कामिल है, वो आपके अंदर की तालीम देगा, आपके रूह का तालीम देगा, जो आपके अंदर से वो शैतान को निकालेगा, आपके अंदर के मैल को, कल्ब को धोने का जिक्र, मंत्र आपको देगा। ये कौन दे रहा है? हमारे सरकार गौहर शाही लोगों को दे रहे हैं। तो आप भी लें और आप अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाल फेंकें। वरना आप पिछली रिवायत उठाकर देखें, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी ताल्लुक रखते थे, जो उनके सोबत में बैठा नहीं करते थे, मोहब्बत से नहीं रहते थे, जो इश्क और मोहब्बत से जो जुड़े हुए थे वो पुख्ता ईमान वाले थे। और जो दूरी दराज वाले थे, कभी कभी मुलाकात करते थे, कभी कभी बैठते थे, कभी कभी तालीम दर्स लेते थे, उनका ईमान कमजोर था। और जब वक्त आई, ऐसा जंग का माहौल आया, तो वो कितने लोग ईमान से फिर गए और हुजूर का साथ छोड़ दिए। और उनके साथ साथ कितने लोग जो फिर गए थे। चंद मुसलमानों के भटकने के वजह से सैकड़ों मुसलमान भटक गए थे और हुजूर का साथ छोड़ दिए थे। तो हुजूर ने वो ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया था कि ये वो मुनाफिक लोग हैं जो दम तो भरते हैं अल्लाह और उसके रसूल का, लेकिन इनके अंदर वो ईमान नहीं है, वो ईमान वाले नहीं हैं, जो वक्त आने पे साथ छोड़ देते हैं। ये वो मुनाफिक लोग हैं। तो ये हम आप भी वही काम करते हैं कि हुजूर की हदीस पढ़ लेते हैं। ईमान किसे कहते हैं, ईमान का
ईमान वाला कैसे बनते हैं, तो वो हदीस पढ़ के उस पर हम अपने आप को फूले नहीं समझते हैं और बोलते हैं कि हम ईमान वाले हैं, तो वो बोलने से नहीं हो जाता है। और ये हमारी जिंदगी में, जाती जिंदगी में ऐसा होता रहता है कि हम पढ़ लेते हैं, बोल तो देते हैं कि हाँ हम हुजूर के मुताबिक चल रहे हैं, उनके हदीस के मुताबिक चल रहे हैं, और फिर भटकते रहते भी हैं, गुमराह भी होते रहते हैं, हमसे वो अमल सरजद होते रहते हैं जिसको हम गौर हमार करते हैं। तो जो पुख्ता ईमान होगा, जो दिल के अंदर से शैतान को निकालेगा, अंदर में नूर बनेगा, तो वो कभी नहीं भटकेगा, कभी नहीं गुमराह होगा। और जो इश्क और मोहब्बत में हुजूर की सोबत में बैठा करते थे, वो लोगों का नफ्स जो था, जिसको कहते हैं हर इंसान एक शैतान जिन के साथ पैदा हुआ है, नापाकी के साथ पैदा हुआ है। हुजूर पाक ने फरमाया कि हर इंसान तो नापाक है, नापाकी के साथ पैदा हुआ है, क्योंकि उसके साथ शैतान जिन लगा हुआ है, लतीफ़ा नफ्स लगा हुआ है। उस नफ्स को पाक करना ही ईमान है। वो नफ्स पाक हो जाता है, नफ्स अम्बारा से नफ्स लवामा, मुल्हिमा, मुतमईना तक पहुंच जाता है, तो वो ईमान वाला बंदा हो जाता है। और ये नफ्स पाक कैसे होता है? ये नफ्स पाक करने के लिए हमें आपको सच्चा गुरु और सच्चा मुर्शिद का चयन करना पड़ता है, उसका हाथ थामना पड़ता है। ये हमारे सरकारे दो आलम के जमाने से चला आ रहा है कि पीरी मुरीदी का सिलसिला, गुरु को पकड़ने का सिलसिला, गुरु का हाथ थामने का सिलसिला, ये तो हर धर्म में चला आ रहा है, सिर्फ मुस्लिम धर्म में नहीं, गैर मजहबों में, दूसरे मजहबों में भी गुरु का साथ पकड़ते हैं, गुरु का चयन करते हैं और गुरु के कहने के मुताबिक अपने अंदर के गंदगी को निकालते हैं और अपने जिंदगी को संवारते हैं, जो ईश्वर से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं। औलिया अल्लाह की किताबें उठा के देखिए, उसमें भी इसी ईमान के बारे में नफ्स को पाक करने का हुक्म हुआ, कल्ब को पाक करने का हुक्म हुआ। कल्ब पाक हुआ, नफ्स पाक हुआ तो ईमान वाले बने। और मौलाना साकिब अली नूरी का छोटा सा क्लिप मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं, आप उनकी भी बयान सुन लें कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो भी यही फरमा रहे हैं कि अपने नफ्स को पाक करना, कल्ब को पाक करना, यही ईमान की अलामत है। आपके अंदर नूर की सरायत होगी, कल्ब पाक होगा, नफ्स पाक होगा, नफ्स मुतमईना के मकाम पे जाएगा, तो आप ईमान वाले बनेंगे, आपका ताल्लुक आपके रब से जुड़ेगा। ईमान वाले बनेंगे तो मोमिन होंगे, और मोमिन होंगे तो आपके ऊपर नमाज फर्ज होगा, क्योंकि नमाज मोमिनों के ऊपर फर्ज है, मुसलमानों के ऊपर नमाज फर्ज नहीं है। कहीं भी कुरान मजीद में यह नहीं लिखा कि मुसलमानों के ऊपर नमाज अल्लाह ने फर्ज किया, मोमिनों के ऊपर फर्ज किया। तो पहले आप मोमिन तो बने, ईमान वाला तो बने। अगर आप मोमिन नहीं हैं, ईमान वाला नहीं है, तो आपके अंदर बुग़्ज़, हिर्सा, जलन, किसी को हिकारत की नजर से देखना, छोटा समझना, ऐसी ऐसी अलामतें, आपको इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, इस सब टाइप की बातें आपके अंदर आएगी ही आएगी। अगर आप मोमिन बनेंगे, ईमान वाले बनेंगे, तो ये सब गंदगी आपके अंदर से जो वो मैल है सब निकल जाएगी, आप पाक हो जाएंगे। इस तरह का ख्यालात आपके अंदर नहीं आएगा, आपका अपने ईश्वर से, अपने रब से ताल्लुक जुड़ जाएगा। अगर आप मोमिन नहीं हैं तो इस टाइप की ख्यालात आएगी, अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, अपने अंदर गुरूरियत, तकब्बुर, छोटा जानना, किसी को हिकारत नजर से देखना, किसी की ना सुनना, किसी की वैल्यू ना देना, ये सब टाइप की बातें आपके अंदर आएगी। अगर आप मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है, तो ये पहचान है, ये अलामत है ईमान के ना होने की और कमजोर होने की। अब आप चाहे नमाज पढ़ें, रोजा रखें, कुछ भी करें, लेकिन ईमान की कमजोरी, ईमान की ना होने की अलामत यही है। ये बात याद रखना।